What happens when we stop depending on others and start helping ourselves? A small bird teaches us one of life's biggest lessons. Self-help is the only way to success. So watch this lesson to discover the answer and how can it happen. Let's start. Welcome to my channel Vidya Crown. There was a family of larks which lived in a cozy nest in a field of ripe corn. एक लार्क चिड़िया ने पके हुए खेत में अपना घोंसला बनाया था। वह अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ वह खुशी से रह रही थी। A lark lived in a field of ripe corn with her little babies happily. Cozy इसका मीनिंग है warm, comfortable and pleasant. Means गरम या आरामदायक जगह। जैसे वो लार्क चिड़िया का घोंसला कैसे था? कोजी था। But that was warm and comfortable and again pleasant for them. One fine morning, the mother lark, before going out to find food for her children, said, "The farmer will come soon to reap his corn, and in that case we shall have to find a new home. So you keep your eyes and ears open today and tell me what you see and hear when I come home tonight." एक दिन सुबह लाल चिड़िया खाना जुटाने के लिए बाहर जाने ही वाली थी। तब उसने अपने बच्चों से कहा कि देखो, अब फसल पूरी तरह तैयार हो गई है और किसान किसी भी समय फसल काटने के लिए आएंगे। तब हमें नया घर ढूंढना बहुत जरूरी है। आप सब किसान की बातों पर ध्यान रखें और जो बात उनमें चल रही हो वो सब मुझे रात में जब मैं वापस आऊंगी तब मुझे तुरंत बता देना, ताकि मैं जल्द से जल्द दूसरा घर देख सकूं या दूसरी जगह देख सकूं। इसका मतलब one fine morning क्या हुआ? Before going out to find food, the mother lark told her young ones that the farmer would come soon to reap his corn because that was ready. In that case, they should have to find a new home. So she told to her young ones, be alert, watch everything and inform her so that she could decide about their new home or next plan. The word is here. It is reap. Reap means to cut or gather crops, especially grain. रिप का मतलब है काटना या असेंबल करना। मीन्स खेती में जो फसल आती है वो फसल काटकर एक साथ एक जगह पे रखना। काटना ही है, काटना भी है उसका मतलब, और काटकर एक साथ रखना ये भी उसका मतलब है। टू रिप मीन्स टू हार्वेस्ट और गैदर क्रॉप्स यूजुअली बाय कटिंग देम विथ अ टूल लाइक अ सिकल। सो रिप का मतलब है काटना या गैदर करना। Next one. When the lark came home, she found her family were very disturbed. "Oh, mother," they cried, "we shall have to leave this place as soon as possible. The farmer came with his sons to make a survey of the field." When the lark came home in the evening, she found that
Her young ones were disturbed. Her young ones told her that they should leave the place as soon as possible because the farmer survey failed to reap. शाम को जैसे ही लार्क चिड़िया आए तो बच्चे शोर करने लगे और उन्होंने बताया कि किसान खेत को जांच करने आए थे, इसलिए जल्द ही उन्हें वे जगह छोड़नी पड़ेगी। अभी सर्वे ये वर्ड आया है, इसका मतलब है किसी वस्तु, स्थिति या लोगों के समूह की गहरी जांच करना, उनका मूल्यांकन करना या उनकी राय जानना। सर्वे टू एग्जामिन और इंस्पेक्ट अ प्लेस और एरिया, किसी भी वस्तु या स्थिति या लोगों के समूह की जांच करना। अभी देखो एक किसान आए हुए हैं, अपने स्टोरी में जो किसान थे वो भी आए थे, अपनी फसल कितनी बनी हुई है और अभी हमें क्या करना चाहिए, इसकी कटवाई करनी जरूरी है या नहीं है, इस बारे में वो सर्वे करने आए थे। तो सर्वे का मतलब है टू एग्जामिन और इंस्पेक्ट अ प्लेस और एरिया। Next one. The farmer said to his son, "The corn is ready for cutting. We shall have to call all our neighbors to reap it tomorrow." The farmers told his sons that the corn was ready for cutting. They should call their neighbors to reap it next day. किसान ने बच्चों से कहा कि खेती अपने तैयार हुई है, फसल अभी तैयार है, तो हमें अपने नेबर्स को बुलवाना है और इसकी कटवाई करनी है। तो ये सब बातें वो किसान की अपने बच्चों के साथ चल रही थी। और लार्क चिड़िया ने कहा था अपने बच्चों से कि खेत दिन भर किसान जो अपनी बातें कर रहा है अपने बच्चों से या किसी रिश्तेदारों से, तो उन पर तुम ध्यान रखो। तो ये सब बातें उन लार्क चिड़ियों के बच्चों ने सुने थे। After listening it patiently, the mother lark said to her young ones, "There is no danger yet. Be on your alert tomorrow also. Keep your eyes and ears open and tell me everything they discuss. This is very important." When the lark returned in the evening, the frightened little lark said, अभी इस पैसेज में क्या कहा है? The baby birds became afraid. They asked their mother, what would happen with them? The mother lark told them patiently, "Don't worry. If the farmer depends on others, then they are safe. But be alert and keep watching on the farmer's activity and provide her with up to date न्यूज। बच्चे बहुत डर गए थे। अब हमारे घर का भविष्य क्या होगा, एक चिंता उन्हें सताई जा रही थी। लेकिन माँ ने उन्हें समझाया कि डरो मत, किसान अभी दूसरों पर निर्भर है, हमें कोई खतरा नहीं। ये बात सुनकर बच्चों को सुकून मिला, लेकिन उन्हें सावधानी बरकरार करने के लिए कहा। और दिन भर किसान क्या कर रहे हैं, इस बारे में चिड़िया माँ ने कहा कि उनकी सब बातें सुनिए, उन पर ध्यान रखिए और शाम को मैं जैसे ही लौटूं सब बातें मुझे बताइए। We must leave this place by tomorrow at any cost. The farmer had come here again and said, "This corn needs to be cut at once.
If your neighbors don't come, we shall call our relatives. Go and tell your uncles and cousins that we need their help to reap the corn tomorrow. Baby Lars cried and told her mother they must leave that place by the next day at any cost. If the neighbors had not come for harvesting, the farmer had decided to call relatives to harvest the crops. जब दूसरे दिन लाल चिड़िया वापस आई तब उसने देखा कि बच्चे बहुत डरे हुए थे और डर में ही कहने लगे कि उन्हें दूसरे ही दिन निकलना होगा, क्योंकि किसान आए थे और उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि उनकी फसल कटवानी ही है। अगर पड़ोस के लोग नहीं आ सकते हैं तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा तो अपने चचेरे भाइयों और चाचा को बुलाओ और ये फसल कटवाओ, हमें उनकी सहायता लगेगी, उनकी सहायता के बिना हम कुछ कर नहीं सकते। अभी बच्चे बहुत डरे हुए थे, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था, लेकिन माँ ने ये सब चीजें शांति से सुन ली। The mother lark smiled and said, "Don't worry, my little hearts. The relatives of the farmers have their own crops to reap. They will give priority to their own work, but we shouldn't become carefree. Listen to their conversation tomorrow also and let me know everything." The mother assured her young ones by saying that, "Don't worry, the relatives of the farmer had their own crops to reap. They would give priority to their own work, but they shouldn't be carefree. They should inform her everything what happened throughout the day." अब क्लार्क चिड़िया ने बच्चों को धैर्य देकर कहा, मेरे प्यारे बच्चों, अभी डरो मत। किसान के जो रिश्तेदार हैं उन्हें अपनी खुद के खेती में भी फसल कटवानी है। वो पहले अपनी फसल कटवाएंगे, बाद में दूसरों की फसल कटवाने जाएंगे, लेकिन बच्चों को सावधानी बरकरार रखने के लिए माँ चिड़िया ने कहा और बोली, किसान के हर एक हालचाल पर नजर रखना और उन्हें सब बातें बताना। अभी यहाँ देखो प्रायोरिटी ए वर्ड आया हुआ है, ये नया वर्ड है। प्रायोरिटी का मतलब है प्रायोरिटी, something that is most important and should be dealt with the first. प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता, किसी चीज या कार्य को दूसरी की तुलना में अधिक महत्व देना और उसे पहले करना। देखो हमारे पास जो कार्य करने हैं तो उसमें कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है, कौन सा कार्य हमें पहले पूरा करना है, वैसे हम उस कार्य को प्रायोरिटी देते हैं। अभी देखो यहाँ 1 2 3 लिखा है। समझो आपको इंग्लिश का होमवर्क 2 तारीख को सबमिट करना है और हिंदी का होमवर्क आपको 3 तारीख को सबमिट करना है और साइंस का प्रोजेक्ट 4 तारीख को सबमिट करना है। तो पहले आप क्या करोगे, कौन से विषय का कार्य हमें सबमिट करना है पहले ये देखोगे और वैसे उस विषय को आप प्रायोरिटी देंगे। अभी देखो यहाँ एक मैंने इमेज दी हुई है, यहाँ क्या है, 2 पाथ है, तो कौन सा पाथ राइट वन है, कौन सा पाथ रॉन्ग वन है। तो हम क्या करेंगे, जरा सोचेंगे, हाँ राइट पाथ में हमें जाना है तो हम राइट पाथ को हम प्रायोरिटी देंगे। वी विल गिव प्रायोरिटी टू राइट पाथ। सो प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता कि किस चीज को हमें पहले चुनना है। The next day again she went out. When she returned in the evening, the baby last cried
"Oh, mother," the farmer said today, that since his neighbors and relatives were busy in their fields, he himself would come tomorrow to reap the corn. So now there is no point in staying here anymore. अभी देखो नेक्स्ट डे क्या हुआ। दूसरे दिन जब चिड़िया घर पर आई तब बच्चे उसे बताने लगे कि माँ, पड़ोसी और रिश्तेदार उनकी खुद की फसल कटवाई में लगे हुए हैं, तो किसान खुद ही आकर फसल की कटवाई करने वाले हैं। अब हमें यहाँ रहना मुश्किल होगा। The next day when she returned, Mother Lark returned, the baby larks cried and informed their mother that both the neighbors and relatives were busy in their own field to reap their own crop. The farmer himself would come the next day to reap the corn. So they should leave the place. अबे वो जगह उन्हें छोड़नी ही पड़ेगी। ऐसे उन बच्चों ने अपने माँ से कहा। बच्चे तो हर बार कह रहे थे कि हमें ये छोड़ना चाहिए, हमें यहाँ से जाना चाहिए, नेबर आएंगे, ये फसल की कटवाई करेंगे, चलो हम यहाँ से निकलते हैं। फिर उसके बाद में चचेरे भाई और चाचा आने वाले थे, तो वो भी नहीं आए। लेकिन बच्चे तो पहले से ही डरे हुए थे। लेकिन माँ लार्क जो थी वो बहुत शांतपूर्ण निर्णय ले रही थी। नहीं बच्चों, अभी तो नेबर आएंगे, तो नेबर तो आए ही नहीं, आएंगे तब देखेंगे। लेकिन चाचा और भतीजे आने वाले थे, लेकिन वो भी नहीं आए। उन्होंने समझाया माँ लार्क ने अपने बच्चों से कि प्यारे बेटियों, वो पहले खुद की फसल काटेंगे, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो पड़ोस के लोग हो। वो पहले क्या करेंगे, अपनी खुद की फसल काटेंगे, बाद में ही दूसरों की सहायता करेंगे ने। अपना काम रखकर कौन जाएगा दूसरे का काम करने। तो ये सब बातें वो अपने बच्चों को समझा रही थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि अभी बच्चों ने बताया कि अभी खुद किसान आएगा। अभी वो किस पर भी निर्भर नहीं है, खुद किसान आने वाला है और फसल की कटवाई करनी है। तो अभी किसान अपने बच्चों के साथ फसल की कटवाई करेंगे, तो अभी यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं। In that case, said the mother lark, we have to be quick. Let us leave this place without any delay. I am saying this because I know if someone depends on others to do his work, it will never be done. Now the mother lark took the final decision and told to her young ones, they must leave that place without any delay. The reason she gave behind that, if someone depends on others to do his work, it would never be done. But when he decided to do his own work, it will be done. So, देखिए अभी ये बात सुनकर लार्क चिड़िया ने कहा कि अब हमें यहाँ से निकलना ही होगा, क्योंकि किसान अब ना पड़ोसी पर निर्भर है, ना रिश्तेदारों पर निर्भर है, अब वे आत्मनिर्भर है। तो अब वो आएगा, अभी वो किसी के ऊपर निर्भर ही नहीं है, मिस खुद आने वाला है। और जब खुद आएगा तो हमारा घोंसला रहने ही वाला नहीं है। तो हमें अभी फाइनल डिसीजन लेना है। वी हैव टू लीव दिस प्लेस एज सुन एज पॉसिबल। But once he takes up his work in his own hands and is determined to do it himself, there is no power on earth that can stop him from doing it. So now this is the right time when we must leave this
place. Now what did she tell to her young ones? Now farmer takes up his work in his own hands, and he determined to do it himself. There is not power on earth that can stop him from doing it. When we depend on ourselves, our work gets done. अभी देखो माँ लार्क ने क्या बताया अपने बच्चों को। अभी वो जो किसान है खुद ही फसल की कटवाई करना चाहते हैं। उन्होंने ठान ली है कि उन्हें ही करनी है फसल की कटवाई, ना रिश्तेदार करेंगे ना पड़ोसी करेंगे। वो किसान अभी आत्मनिर्भर था, उसे कोई भी शक्ति रोकने वाली नहीं थी। यही सही वक्त है कि अभी और लार्क चिड़िया ने कहा कि अभी हम यहाँ से निकले, क्योंकि स्वयं सहायता ही सबसे अच्छा उपाय है। जो व्यक्ति अपना काम खुद ही करता है, स्वयं ही करता है, किसी पर निर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर होता है, वही सफल होता है। The best helper in your life is you, yourself. So keep in mind, success begins the day you decide help yourself. अभी इस पैसेज में डिटरमिन ये नया वर्ड्स आया था, उसका मतलब है हैविंग मेड अ फर्म डिसीजन टू डू समथिंग। दृढ़ निश्चय, ठान लेना। अगर कोई काम करने का दृढ़ निश्चय किया तो उसे पूरा करके ही छोड़ना। हैविंग मेड अ फर्म डिसीजन टू डू समथिंग। देखो किसान ने जब ठान लिया कि मेरी फसल की कटाई मैं खुद करूंगा, तब उसकी फसल की कटाई हो गई और वो जो लार्क चिड़िया थी उसे भी अपनी जगह खाली करनी पड़ी। ठान लेना, दृढ़ निश्चय करना। जब हम दृढ़ निश्चय करते हैं तो अपना काम हम जल्द पूरा कर सकते हैं और पूरे इस हम मोटिवेशन के साथ काम करते हैं और सक्सेस पाते हैं। तुम बच्चों देखो, जब तुम्हारा होमवर्क हो या कोई प्रोजेक्ट हो या कोई एक्टिविटी हो, तुम जब उसमें घुल मिल जाते हो, जब तुम पार्टिसिपेट करते हो, तुम सेल्फ डिपेंडेंट रहते हो, खुद का निर्णय खुद ही लेते हो और डिटरमिन्ड होकर जब काम पूरा करते हो तो तुम्हें सक्सेस जल्द मिल जाता है। इजीली यू कैन अचीव योर गोल, अचीव योर सक्सेस। देखो यहाँ अभी नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ है, इसमें क्या कहा है? Indeed, self-help is always preferable to others' help. देखो ये पाठ का सार है। It is the moral of the story. The moral of the story is self-help is the best help. जब खुद की सहायता खुद करोगे, खुद पर निर्भर रहोगे, आत्मनिर्भर बनोगे और खुद का काम खुद करोगे तो हाँ, यश अपने से आपसे बहुत ही नजदीक है। आप उसमें क्या पाओगे? सक्सेस डेफिनेट पाओगे। यू विल गेट द सक्सेस डेफिनेटली इफ यू हेल्प योरसेल्फ। सो इट इज द बिगेस्ट लेसन द लार्क बर्ड टीचेस us. The again I'm telling you, the best helper in your life is you. Self-help is the best help. The new word in the last passage is preferable, means more desirable or suitable. अधिक बेहतर या पसंदीदा। इसका उपयोग तब किया जाता है जब दो या दो से अधिक विकल्पों में से किसी एक को दूसरे की तुलना में अधिक अच्छा या उपयुक्त माना जाता है। Now see that boy. What is he preferring? Fruits, not fast food, because he knows that one is suitable or desirable for his health. So preferable
ऐसे ही चीजों को करते हैं जो बेहतर है या पसंदीदा है. Now, what we learn from today's lesson is that the best helper in your life is you only. Success begins the day you decide to help yourself. And the moral of the story is the best self-help is the best help. So thank you for watching video till the end, and please like, share and comment my channel Vidya Craft. And yes, please subscribe it by pressing bell icon to get notification about every my new video. Thank you again and wish you all the best.